चलिए let's start another question. Illustration number 5. It's a level up than the previous one. Illustration number 5. Birla Cotton Mills. So let's write down the storyline. Illustration 5. 1st of August 2009. M1 बाय करी है at the rate of 90,000. मैं बाय को लिखती नहीं हूँ, बस सोल्ड को मेंशन कर देना है कि नॉर्मली हम बाय ही कर रहे हैं, ठीक है. एंड देन 1st of October 2010 we purchased another machinery M2 at the rate of 40,000. And on 30th June 2011 M1 is sold for 58,000. And on the same date, of course, another machinery which was purchased at the rate of 1 lakh. That's it. Depreciation provided. So these are the extra things that we have to write. Depreciation at the rate of 20%. Of course, this is the SLM, original cost method, fixed line method, fixed cost method, straight line method, all are same. And accounts are closed. Closing क्या है? Closing on 31st March every year. ये बेसिक जानकारी. अब आपको क्वेश्चन में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. And you can just start your question. Just leave the book now. There is no need. You'll just read what you have to make. Machinery account for 3 years. Let's make the format and then the working notes. Now, even without the help of this book, we can directly. No need to do this. Just come on the storyline. Write down your question. Okay. So I'm gonna make a machinery account, but because this is the storyline here, so यहीं बना सकते हैं. चलिए यहीं बनाते हैं और वर्किंग नोट्स आगे करेंगे. So this is your machinery account for 3 years. तो machinery account, debit, credit, and then your format is here. This is amount. This is another column for date, another column for amount. So this is date, particulars. This is rupees, date, and then particulars. Then again rupees. No need to draw it with the scale. Let's begin the question. Storyline is up here. Question within 5 minutes. Next 5 minutes it shall be done. Because I'm explaining, it will take a little longer. So 1st of August. Start the question from the very first date, August 1st. And this is to bank account, as you know, when the machinery is being purchased. Machinery account debit to bank. This is M1, 90,000. Now till the end of the year, which is last date is 31st March 2010. Nothing else is happening. So you just have to apply depreciation before the closing. That is depreciation account debit to machinery. Machinery is getting credited because of the depreciation. And here M1 पे डेप्रिसिएशन लगना 8 महीने हैं. ध्यान से देखिए. अगस्त सितंबर तक 2 महीने हैं. सितंबर से मार्च तक 6. तो 6 और 2 8 हो गए. 8 महीने का डेप्रिसिएशन आपको 90,000 पे लगाना है एट द रेट ऑफ 20%. चाहें तो इसका वर्किंग नोट समझ सकते हैं और चाहें तो इसको ओरली रफ में कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं. बट आई विल सजेस्ट कि आप वर्किंग नोट दिखा दें, ज़्यादा बेहतर है. तो ये हो जाएगा आपका working note number 1. Let's draw the working note here, and that's working notes. First is depreciation on M1 for 8 months. So you know it is कितने की मशीनरी हमारी 90,000 की और 20% है 8 महीने का. 8 महीने जितने महीने का होता है उसको ऊपर लिखते हैं अपॉन 12. तो अगर कोई पूरे साल का लगाता है तो 12/12 तो 1 ही होता है, इसलिए उसको लिखते नहीं हैं. तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी 518. यस, दिस इज 12 1500. 1500 इंटू 8 हो गया आपका 120 20 12,000. Here is the amount. Just put it here.
12,000। ठीक है, अब आपका साल का अंत है और कुछ तो हो नहीं रहा है। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद सीधा क्लोजिंग होता है साल के अंत में बाय बैलेंस CD 78,000, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। फिर आप ओपन कीजिए 2010 April 1st to balance BD brought down. Of course, this is a single machine, just write down here. This is also single machinery. So this is 78,000 for M1, no doubt about it. अब इस साल में देखिए 1 अक्टूबर को यानी कि 6 महीने बीतने के बाद अक्टूबर 1 को एक मशीनरी और खरीदी जा रही है। अगर आप इस रिदम को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अब देखिए अक्टूबर को खरीदने के बाद और कुछ नहीं हो रहा है, कब तक? साल का अंत। साल का अंत कब होता है? 2011 मार्च 31। दैट इज डेप्रिसिएशन टाइम इफ नथिंग एल्स इज हैपनिंग। तो डेप्रिसिएशन लगेगा, दोनों पे लगेगा, दोनों है मशीनरी हमारे पास। तो M1 पे तो पूरे साल का आप देख पा रहे हैं, पूरे साल के लिए हमें ये नहीं करना होता है बस 8/12। तो 90,000 M1 का कॉस्ट है और उस पर 20% साल का लगेगा, तो 10% 9,000, 20% 18,000। इसके लिए वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। M2 जो है वो साल के बीच में खरीदिए। पहली बार आप इस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो वर्किंग नोट नंबर 2 में जाइए और लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन M2 फॉर 6 months, दैट इज 40,000 की है, उस पर 20%, 8,000 हो गया। 6 महीने का कितना हो गया? 4,000 रुपये हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, ये आने वाला है। तो ये हो गया आपका 4,000, 22,000 टोटल डेप्रिसिएशन। और अब क्लोज कर दीजिए बाय बैलेंस CD M1 M2। 78 में से 18 गया, 60 बचा, 4 में 4 गया, 36 बचा, 96,000 बच गया है। और ये हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, अब इसको ओपन करिए, फटाफट ओपन करिए। अगला साल आपका शुरू हो रहा है April 1 लगाना ही है हमें। टू बैलेंस BD M1 M2 60, 36, दिस इज 96,000। नाउ इस साल कुछ हो रहा है? हाँ जी, इस साल सेल भी हो रही है और एक और परचेज। तो सबसे पहले जैसे जैसे ऑर्डर में अब हमारी 2 चीज़ें वी हैव डेल्ट विद देम। ये वाला करेंगे 30 जून को। जब मशीनरी बिकती है ना तब तक का डेप्रिसिएशन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो M1 का डेप्रिसिएशन 1 तारीख तक तो लग गया है, देखिए पिछले साल लगा के आ रहे हैं। पर यहाँ से लेके जब तक ये सेल नहीं होते 30 जून 2011 तब तक का डेप्रिसिएशन 3 महीने का लगा है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। सो लेट्स डू इट। इसको हटा देते हैं। So this is third working note, which is depreciation on M1 for 3 months before sale. So this is 90,000 की जो मशीनरी है उस पर 20% 3 महीने का लगाएंगे, 4500, क्योंकि 1/4 हो जाएगा 18,000 का। तो ये आपका 2011 जून 30 को डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि मशीनरी घटती है डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 सेल होने से पहले भी डेप्रिसिएशन लगता है, यही मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ। और अब इस दिन ये बिक भी रही है तो उसके लिए एक वर्किंग नोट आएगा। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3। अब आएगा वर्किंग नोट नंबर 4। दिस इज फाइंडिंग आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ M1। तो सबसे पहले जो भी मशीनरी जिस भी साल बिकती है उसकी ओपनिंग ईयर में, मतलब जिस साल वो बिक रही है, हमारी बिक रही है 11-12 के बीच में, तो 11-12 के जो ओपनिंग बैलेंस है उस मशीनरी का उसको जरूर लिखिए। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है M1 का वो लिखिए जब तक का डेप्रिसिएशन लग के आया हुआ है। तो ये है बुक वैल्यू ऑफ M1 एज ऑन 1 April 2011, दैट इज इक्वल टू 60,000 रुपये। अब इसमें लेस कीजिए जब तक ये बिक रही है, कब तक? 30 जून 2011 को बिक रही है। तो ये लिखिए डेप्रिसिएशन टिल 30 जून 2011, इसका मतलब 3 महीने का।
जो कि आप कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 में आप करके आ रहे हैं ये काम, वहीं से इसको उठाइए और माइनस करके बताइए। ये हुआ 55,500। दिस इज द बुक वैल्यू बिफोर सेलिंग, बुक वैल्यू ऑफ M1 एज ऑन 30th जून। आ गई। अब इसमें से लेस कीजिए सेल वैल्यू which is 58,000 given in the question, so 2,500 is your profit। भाई इतने की मशीनरी इतने में बिक रही है तो प्रॉफिट ही हुआ ना हमको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ M1, दिस इज द फिगर विच इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड। एंट्री क्या होती है, एंट्री आपको बताई जा चुकी है। एंट्री इज जब बिकता है तो बैंक टू एसेट होता है, अगर प्रॉफिट पे बिकता है तो प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है। पर यहाँ पे जो मैंने एंट्री करी है जर्नल एंट्री है, यहाँ पर आपको अकाउंट में प्रॉफिट को शो करना है। अकाउंट में प्रॉफिट को शो करना है तो आप करेंगे क्या, आप एक समझाने के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ यहाँ पे कि जब आपका एसेट बिका तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 58, और फिर ये मशीनरी अकाउंट में से ही प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप अल्टीमेटली देखेंगे मशीनरी नेट तो क्रेडिट ही हो रही है हमारी 55,500 से, यानी जा रही है हमारी बुक से। तो बाय बाय करते हैं मशीनरी को, पोस्टिंग कीजिए जून 30 को 2011 बाय बैंक। पैसा तो आ गया 58,000, लेकिन वो पैसा सारा का सारा मशीनरी अकाउंट में नहीं जा रहा है, क्योंकि उस पैसे में से 2,500 रुपये का तो प्रॉफिट है, तो वो डालेंगे हम मशीनरी अकाउंट से डेबिट करके टू प्रॉफिट जून 30 को। एंड लॉस अकाउंट, दिस इज 2,500। खत्म हो गया, मशीन खत्म अब हमारी बुक से। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन एज यूजुअल। अब हमारा साल अंत होने वाला है, उससे पहले हम देखेंगे स्टोरी लाइन में कोई डेट तो नहीं आ रही। हाँ जी, इसी डेट को एक मशीन और खरीदी है, तो आ जाइए वापस जून 30, वही सेम प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को समझ जाना है। टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, और अब साल का अंत होने वाला है, तो 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। मशीन कितनी बची भाई, एक M2 बची, एक M3 बची। M1 तो बिक गई, M2 पे पूरे साल का। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, M2 की ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी 40,000, तो उस पर 20% के हिसाब से डिडक्शन कितना हो गया 8,000। अब तो पूरे साल का लगेगा ना, शुरू से है ना हमारे पास ये। और M3 जो है वो जून 30 को आई है, मतलब M3 पे कितना लगेगा, ये वर्किंग नोट नंबर 4 है भाई, ये लिखते जाएं। अब आएगा वर्किंग नोट नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन M3 फॉर जून 30 को लिया ना, इसका मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 3 और 6 9 महीने फॉर 9 मंथ्स। कितना, 1 लाख की मशीनरी, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 9/12, ये आएगा आपका 15,000। काट के देख लीजिए 15,000 आने वाला है, क्योंकि 20,000 हो गया साल का, 20% 1 लाख का 20,000 हो गया, 20,000 का 3/4, 9/12 इज 3/4, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट मार्च 31 बाय बैलेंस CD ओनली फॉर M2 एंड M3 बिकॉज M1 इज सोल्ड नाउ, एंड M2 का ओपनिंग बैलेंस है 36 में से 8 गया 28, और 1 लाख की M3 है, 15 डेप्रिशिएट हो गई है, बची 85 की, तो ये बचा 8 5 13 8 2 10 11। लेट्स ऐड देम अप, दिस इज 500, 8 4 12, 3 15 3 18, 5 2 7 1 8 1 9, और ये भी 198 500। अब आपको ओपनिंग छोड़ना ही है, पूछे चाहे ना पूछे। 2012 April 1st to balance BD M2 M3,
ये जो मैं बाइफर्केशन दिखा रही हूँ हर मशीनरी का, दिस इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नॉट रिक्वायर्ड, you may or may not show it. So that's how the question is done. This is your question number illustration number 5, which is a level up than the previous question that we did, which was this question, this one, illustration number 2, which we discussed in the previous video. And now we will move on to the next question in the next video, which will be a level up than this. So first you understand this.